اور جب اہل بیت کا ذکر آیا تو میں حیران رہ گیا جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو بڑے غامدی صاحب، کیا میں کہوں اب آپ کو کہ اتنا عقل شعور والا بندہ بھی اہل بیت کے حوالہ سے 1400 صدیوں کا ذخیرہ حدیث دیکھے تو اسے بھی سمجھ آتی ہے کہ اہل بیت سے مراد کون ہے، کن کا ذکر ہے۔ لیکن آپ نے ٹوٹلی گفتگو ازواج مطہرات کی جانب لے کر گئے ہیں کہ اس سے مراد اہل بیت سے مراد صرف اور صرف ازواج مطہرات ہیں، کر دیا ہے۔ یہ اہل بیت اطہار کی فضیلت اور کسی کو حاصل نہیں ہوئی، کو کہ سارے اپنے اپنے لحاظ سے مقام و مرتبہ والے ہیں۔ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کا مقام دیکھیں تو سورہ نور کے اندر آپ کے لیے قرآن کے دڑے کی خصوصیت بیان ہو رہی ہے تو دوسرے کا رد ہو رہا ہے، ایسا نہیں۔ یہ ناسبیوں کی سوچ ہے، ناسبیوں والی سوچ ہے کہ اگر ہم یہاں پر ذکر اہل بیت کریں گے تو اگر ہم نے ذکر صحابہ نہ کیا تو ہم مسلمان ہی نہیں ہیں۔ یہ تو عجیب سوچ ہے۔ اور ذکر صحابہ کیا تو ذکر اہل بیت نہ کیا تو اس سے میں جب بھی اہل بیت کا ذکر کیا تو خصوصیت والوں کا خاص کر ذکر کیا کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سوشل میڈیا کی معروف شخصیت جاوید احمد غامدی صاحب، جن کی ایک ویڈیو حدیث ثقلین کے حوالہ سے سوشل میڈیا پر چل رہی ہے، کافی سارے احباب نے سوال کیا کہ کیا جو غامدی صاحب نے اس کا مفہوم پیش کیا وہ درست ہے۔ تو اس پر جب میں نے غور کیا تو اس کے اندر غامدی صاحب نے حاضرین کے لیے سب سے پہلے وہ حدیث پاک پیش کر دیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین احدہما اکبر من الآخر کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو عظیم باری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک کتاب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور دوسرا میرے اہل بیت ہیں، و عطرتی اہل بیتی۔ لوگوں، ان دونوں کا دامن تھامے رکھو گے، زندگی میں کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اہل بیت کا جب ذکر فرمایا تو فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ لوگوں، میرے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، یعنی ان کا حیا کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا، ان سے محبت کرنا۔ اب یہ حدیث پاک ہے دو باری چیزوں کے حوالہ سے، ثقلین باری چیزیں، دو تثنیہ کا صیغہ جب آیا تو دو کا ذکر ہوا، ایک کتاب قرآن مجید اور دوسرا اہل بیت۔ غامدی صاحب گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کتاب اللہ سے تو مراد قرآن مجید ہے، بے شک وہ کتاب ہدایت ہے، کتاب نور ہے، اور انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ جو اس کا دامن تھامے گا اس حدیث پاک کے ضمن میں انہوں نے کہا کہ وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ اور جب اہل بیت کا ذکر آیا تو میں حیران رہ گیا جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو بڑے غامدی صاحب، کیا میں کہوں اب آپ کو کہ اتنا عقل شعور والا بندہ بھی اہل بیت کے حوالہ سے 1400 صدیوں کا ذخیرہ حدیث دیکھے تو اسے بھی سمجھ آتی ہے کہ اہل بیت سے مراد کون ہے، کن کا ذکر خاص ہوتا ہے، کن کے لیے خاص الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ قرآن میں آیت مباہلہ کے اندر کون لوگ ہیں؟ قرآن میں آیت مودت سورہ شورى کی الا المودۃ فی القربى، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیر۔ لیکن آپ نے ٹوٹلی گفتگو ازواج مطہرات کی جانب لے کر گئے ہیں کہ اس سے مراد اہل بیت سے مراد صرف اور صرف ازواج مطہرات ہیں۔ غامدی صاحب، اگر ازواج مطہرات ہی صرف اور صرف ہوتے تو پھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے جو حدیث بیان کی ہے مسلم شریف کے اندر، وہ کس کھاتے میں آپ ڈالیں گے؟ بے شک ازواج مطہرات پوری امت کی مائیں ہیں، قرآن کی نص ہے، اور جب نص آ جائے تو اس کا انکار کفر ہوتا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، بات ختم ہو گئی
کہ ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن یہاں پر اہل البیت کی بات ہو رہی ہے، بیویاں بھی اہل بیت ہیں، لیکن اہل بیت کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذخیرہ حدیث سے جو سب سے بڑی فضیلت ملتی ہے وہ کن لوگوں کی ملتی ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت ایک چادر اوڑے ہوئے باہر تشریف لائے، مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، تو فجال حسن ابن علی جن، تو آپ کے پاس حضرت سیدنا امام حسن بن علی علیہ السلام تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فادخلها، انہیں چادر میں داخل کر لیا۔ اب دیکھیے کن اہل بیت کو فضیلت حاصل ہوئی ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے، اس سے نہ میری ذات کو کوئی بڑائی ہے نہ میری ذات کو کوئی فائدہ ہے، لیکن جن کا مقام و مرتبہ اللہ نے بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں فضیلت عطا فرمائی، ہم اور آپ کون ہوتے ہیں ان کو کم کرنے والے؟ امام حسن تشریف لائے، آقا علیہ السلام نے انہیں چادر میں داخل کر لیا، ثم جال حسین فدخل معہ، پھر امام حسین تشریف لائے، آقا علیہ السلام نے انہیں بھی چادر کے اندر داخل کر لیا، ثم جات فاطمہ سلام اللہ علیہا فادخلہا، پھر سیدہ کائنات سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ زہرا تشریف لائیں، آقا علیہ السلام نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا، ثم جاء علی فادخلہ، پھر مولا علی تشریف لائے، آقا علیہ السلام نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا، ثم قال، پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، پھر آقا علیہ السلام نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک و نقص، تمام قسم کی یہ جو میل کچیل ہے وہ اللہ رب العالمین نے تم سے دور کر دی ہے، اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف ستھرا کر دیا ہے۔ یہ اہل بیت اطہار کی فضیلت اور کسی کو حاصل نہیں ہوئی، کہ سارے اپنے اپنے لحاظ سے مقام و مرتبہ والے ہیں۔ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کا مقام دیکھیں تو سورہ نور کے اندر آپ کے لیے قرآنی آیات اترتی ہیں، ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ، دیگر ازواج مطہرات سب کے مقام ہیں، لیکن یہ فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے جن کو عطا فرمائی ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ 4 نفوس قدسیہ ہیں جن کو حضور چادر تطہیر کے اندر لے رہے ہیں۔ آیت تطہیر بھی اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ چادر کے اندر جن 4 نفوس قدسیہ کو لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، یہ کسی اور کے لیے نہیں پڑھی گئی۔ غامدی صاحب اس مسلم شریف کی حدیث پاک کو بھی پبلک کے سامنے کھول کر بیان کریں۔ دوسری حدیث پاک وہ ترمذی شریف کے اندر بھی ہے اور طبرانی شریف کے اندر بھی ہے، اور امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن، یہ حدیث پاک حسن ہے، کہ جب ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت نازل ہوئی کہ پس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل، تمام قسم کی جتنی بھی میل کچیل والی چیزیں ہیں سب دور کر دے، اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر اللہ تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اب قرآن نے کیٹیگوریکلی اہل بیت کہا ہے، اور جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو اس کا مفہوم بڑی غور طلب والا ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حسنین کریمین سلام اللہ علیہم کو بلایا اور انہیں ایک کملی میں ڈانپ لیا، چادر میں ڈانپ لیا۔ غامدی صاحب
किन को डांपा गया? सैयदा कायनात को डांपा गया। किन को डांपा गया? इमाम हसन हुसैन को डांपा गया। और फिर हजरत अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी कमली में ढांप लिया। फिर क्या हुआ? आप जिस हदीस पाक पर गुफ्तगू कर रहे हैं, हदीस किसा हो, इसके अलावा सकलैन हो, दोनों में देख लीजिए किन की खसूसियत बयान हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि एक दड़े की खसूसियत बयान हो रही है तो दूसरे का रद्द हो रहा है, ऐसा नहीं। ये नास्बियों की सोच है, नास्बियों वाली सोच है कि अगर हम यहां पर जिक्र अहले बैत करेंगे तो अगर हमने जिक्र सहाबा ना किया तो हम मुसलमान ही नहीं है। ये तो अजीब सोच है। और जिक्र सहाबा किया तो जिक्र अहले बैत ना किया तो इससे मुराद भी कुछ और बंदा ले। ये अजीब तफरकाबाजी है। इससे थोड़ा सा निकल कर सोचिएगा जरूर कि आका अलैहिस्सलाम ने जब इन चारों नफूस कुदसिया को चादर में लिया और सुम्मा काला, फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा अहलु हाउलाई अहलु बैती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। कौन? अली, फातिमा, हसन, हुसैन। इन चारों को खसूसियत दी गई है, इन चारों को चादर में लिया गया है। और तिरमिज़ी शरीफ के अंदर, तबरानी शरीफ के अंदर यह हदीस पाक वाज़े मौजूद है। मुस्लिम शरीफ के अंदर भी जो इसका उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ने शान नज़ूल बयान किया। वो बयान फरमाती हैं तब भी चारों नफूस कुदसिया थे। कौन? अली, ज़हरा, हसन और हुसैन। आपकी थंबनेल बनाने वाली टीम भी बड़े रुखे नाम लिखती है, उन्हें भी सैयदा कायनात लिखने की तौफीक नहीं, हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा लिखने की तौफीक नहीं। उन्हें भी थोड़ा सा अदब सिखाएं। और जब आका अलैहिस्सलाम ने इन चारों नफूस कुदसिया को उस चादर के अंदर लिया, बस फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये आयत मुबारक पढ़ी, फ़अज़हिब अन्हुम रिज्सा व तत्हिरहुम तत्हीरा। बस इनसे हर किस्म की आलूदगी दूर फरमा। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले अल्फाज इरशाद फरमाते हैं कि फ़अज़हिब अन्हुम रिज्सा, अल्लाह तू इनसे हर किस्म की आलूदगी दूर फरमा दे और इन्हें खूब साफ सुथरा फरमा। हदीस पाक का नुक्ता आगाज और नुक्ता इख्तिताम, कालत उम्मु सलमा था। उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जब यह मंजर देखा तो उन्होंने अर्ज की, व आना माहुम या नबी अल्लाह, काला अंती अला मकानिकी व अंती अला खैरिन। तो सैयदा उम्मे सलमा का भी दिल चाहा कि मैं भी शामिल हो जाऊं। तो उन्होंने अर्ज की, अल्लाह के नबी मैं भी इनके साथ हूं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी जगह रहो और तुम तो बेहतर अपने खैर के मुकाम पर हो। लेकिन यहां पर जो खसूसियत थी वो मंशा इलाही के मुताबिक थी। यानी हजूर ने सैयदा उम्मे सलमा जो अज़वाज मुतहरात में से हैं उन्हें फरमाया कि तुम खैर पर हो, लेकिन उस चादर के अंदर की खसूसियत और किसी को हासिल नहीं हुई। इससे मुराद उनकी तौहीन नहीं, उनको जब हजूर ने फरमा दिया आप खैर पर हैं तो उनकी फजीलत अलग। लेकिन यहां पर हम अल्लाह ने जो फजीलत बयान कर दी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत बयान कर दी, तो हम कौन होते हैं उस पर उंगली उठाने वाले? के अहले बैत से मुराद सिर्फ अज़वाज मुतहरात हैं। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया कि या अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, तो इनसे नापाकी दूर फरमा दे, इन्हें खूब साफ सुथरा कर दे, तो फिर तो गुंजाइश ही नहीं रहती कि कोई बंदा मोमिन, कोई मुसलमान इस पर अपनी मन गढ़त तवील पेश करे कि नहीं जी इससे मुराद सिर्फ अज़वाज मुतहरात है। और इस हदीस सकलैन इतनी फजीलत वाली हदीस को शिया के रद में और रवाफिज के डर से कि कोई हमें राफजी ना कह दे, उसे बिल्कुल उसका मफहूम ही चेंज कर देना, उसकी हालत को ही बदल देना और कह देना इससे मुराद सिर्फ अज़वाज मुतहरात हैं, ये बदयांती है। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप बयान करते हैं मुस्लिम शरीफ के अंदर, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर, मुस्नद अहमद के अंदर, निसाई शरीफ के अंदर,
اور वकाल अबू ईसा, इमाम अबू ईसा फरमाते हैं आज़ा हदीस हसन, कि ये हदीस भी हसन है। और जब इमाम मुस्लिम ने लिख दिया तो इसका दर्जा उससे भी बढ़ गया कि जब ये आयत मुबारका लम्मा नज़लत हाज़िहिल आयतु फ़कुल तालू नदू अबना अना व अबना अकुम, आयत मुबाहला हम आशिक लोग इसे कहते हैं। क्या आयत मुबाहला कि जिसके अंदर भी कौन है, किन का जिक्र हुआ है? अली, फातिमा, हसन और हुसैन का जिक्र हुआ है। तो हजरत साद कहते हैं कि दआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयन व फातिमाता व हसनन व हुसैनन फ़क़ाला अल्लाहुम्मा हाउलाई अहली। ये आपको समझ नहीं आ रही कि अहले बैत जिन्हें खास खसूसियत हासिल है, जिन्हें हजूर बार बार अहले बैत कह रहे हैं, जिन्हें बार बार शर्फ अहले बैत अता कर रहे हैं, और जिन्हें बार बार अल्लाह की मंशा के मुताबिक, क्योंकि जो नबी करता है वो मंशा इलाही होती है। तो हजरत साद बिन वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम को बुलाया। दआ रसूलुल्लाह, हदीस पाक के अल्फाज हैं, और किसी को नहीं बुलाया। इनको बुलाकर फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, ये मेरे अहल हैं, ये मेरे घर वाले हैं। और फिर एक रिवायत में अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहू अल्लाहुम्मा आदि मन आदाहू, अल्लाह जो इनसे प्यार करे तो उनसे प्यार कर, अल्लाह जो इनसे बुग़्ज़ रखे तो उनसे नफरत कर। अब गामदी साहब, क्या आप इस पर भी अब क्लिप बनाएंगे कि आयत मुबाला में नहीं जी वो अहले बैत का मफहूम यूं है, फिर यूं है, फिर चूंकि, फिर चुनाचे। खुदारा कोई रहम करें, आगे ही उम्मत मजीद ग्रोह दर ग्रोह हो रही है। आप तो बड़े तहम्मुल मजाजी से गुफ्तगू करते हैं, तो कम अज़ कम तहम्मुल मजाजी से मुताला भी करें, गौर करें, उम्मत को रिफ्ज़ और शीयत के डर से हक गोयाई से महरूम ना करें। और फिर तबरानी शरीफ के अंदर भी रिवायत है और अल मुस्तदरिक के अंदर भी रिवायत है, ये भी पढ़ लीजिएगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा आप रिवायत करते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलु अहले बैती मसलु सफीनत नूहिन, कि मेरे अहले बैत की मिसाल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। फरमाया कि मन राकिब फीहा नजा, जो इसमें सवार हो गया वह निजात पा गया, और वमन तखल्लफ अनहा गारिका, जो इससे पीछे रह गया वो गर्क हो गया। अब कौन से अहले बैत हैं? अज़वाज मुत्तहरात से तो किसी को इतनी तकलीफ नहीं, उनका एहतराम करते हैं लोग। अब तो शिया में भी लोग एहतराम करते हैं। असल मसला किन से है? अली और ज़हरा, हसन और हुसैन से है, और उनकी औलाद से है। क्या आपको नजर नहीं आ रहा? सदियां बीत गई हैं, किस तरह आले रसूल के साथ दुश्मनी की जा रही है, किस तरह खून रसूल के साथ धोखादही की गई, किस तरह करबला के मैदान में जिनको तड़पा तड़पा के शहीद किया गया। क्या आपको नजर नहीं आ रहा? क्या आप अब वाक़े करबला को भी उसे भी क्लोज कर देंगे, उसे भी किस्सा कहानी कह देंगे? खुदारा रहम करें। फिर आगे देखिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस। अब एक और हदीस पाक है, इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरिक के अंदर इसको रिवायत किया। हाज़ा हदीसुन सहीहुल इस्नाद, आप फरमाते हैं इसकी सनद भी दुरुस्त है कि हज़रत जाबिर रिवायत करते हैं, हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर माँ के बेटों का आबाई ख़ानदान होता है जिसकी तरफ वो मंसूब होते हैं। फरमाया कि सिवाय फातिमा के बेटों के, बस मैं ही इनका वली हूं और मैं ही इनका नसब हूं। इस हदीस पाक को किस खाते में डालेंगे? क्यों इतनी औलाद फातिमा की फजीलत बयान हो रही है? क्यों उन्हें चादर में लेकर ये फजीलत उनकी खास की जा रही है? अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती, अल्लाह ये चादर वाले मेरे अहले बैत हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका नसब कौन सा नसब है? हजूर फरमाते हैं व उस बतहुमा, कि इनका नसब ही मेरा नसब है, हसनैन करीमैन का नसब ही मेरा नसब है, मैं ही इनका वली हूं, मैं ही इनका नसब हूं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम
औलाद फातिमा के बारे में ये इरशाद फरमा रहे हैं, उम्मत को बता रहे हैं कि हसनैन करीमैन और इनकी औलाद औलाद ज़हरा ये मेरे अहले बैत हैं, इनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, इनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। वो जो हदीस पाक है, हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। इस हदीस पाक को किस खाते में डालेंगे? और फिर हजरत जाबिर की रिवायत है तबरानी शरीफ के अंदर, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला जअला ज़ुर्रियत कुल्लि नबिय्यिन फी सुल्बिही, यकीनन अल्लाह ताला ने हर नबी की औलाद उसकी सुल्ब में रखी है। व इन्नल्लाह जअला ज़ुर्रियती फी सुल्ब अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। हजूर फरमाते हैं बेशक अल्लाह ताला ने मेरी औलाद अली बिन अबी तालिब की सुल्ब में रखी है। अब अली को हजूर फजीलतें दे रहे हैं और अली को खास अहले बैत की उस चादर के अंदर शर्फ हासिल है। इसको किस खाते में डालेंगे गामदी साहब? और फिर एक और हदीस पाक है, हजरत अबू मसूद अंसारी सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला सलातन लम युसल्ली फीहा अलैया व अला अहले बैती लम तुकबल मिन्हु। अब इस हदीस पाक को किस खाते में डालेंगे कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने नमाज पढ़ी और मुझ पर और मेरे अहले बैत पर दरूद न पढ़ा, इसकी नमाज कबूल न होगी। ये किन से बुग़्ज़ है? 14 सदियों के अंदर हमें तो औलादे आले ज़हरा से बुग़्ज़ नजर आते हैं, लोगों के अंदर आले अली से बुग़्ज़ नजर आते हैं, अज़वाज मुतहरात से इस हद तक किसी का बुग़्ज़ नहीं है। अल्लाह उनकी शानें और बुलंद करे, लेकिन ये भी शानें अल्लाह ने अता फरमाई। और फिर बड़ी खूबसूरत हदीस पाक है, इमाम तिरमिज़ी रिवायत करते हैं, इमाम नसाई रिवायत करते हैं, इमाम अहमद बिन अंबल रिवायत करते हैं। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं हाज़ा हदीसन हसन, ये हदीस पाक हसन है कि हज़रत हुज़ैफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना हाज़ा मलकुन लम यंज़िल अर्दा कत्तु क़ब्ल हाज़िहिल लैला तिस्तअज़ना रब्बहु अन युसल्लिम अलैया युबश्शिरनी बिअन्ना फातिमता सय्यदातुन निसाई अहलिल जन्ना व अन्नल हसन वल हुसैना सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, कि एक फरिश्ता जो इस रात से पहले कभी जमीन पर ना उतरा था, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उसने अपने परवरदिगार से इजाजत मांगी कि मुझे सलाम करे और मुझे ये खुशखबरी दे कि हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा अहले जन्नत की तमाम औरतों की सरदार हैं और हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम जन्नत के तमाम जवानों के सरदार हैं। रामदी साहिब, इस हदीस पाक को हम किस खाते में लाएंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस पाक बयान की है, ये अल्लाह ने बशारत दी है फरिश्ते के हाथ कि जाओ मेरे महबूब को बताओ कि आज के बाद सैयदतुन निसाइल आलमीन तमाम जन्नती औरतों की सरदार हैं और इमाम हसन और हुसैन तमाम जन्नती जवानों के सरदार हैं। अब हम इस हदीस पाक को किस खाते में लाएंगे? फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फातिमा तु बता तुम मिन्नी, कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जो फातिमा को इज़ा पहुंचाएगा वो दर हकीकत मुझे इज़ा पहुंचाएगा। ये मकाम व मर्तबा सैयदातुन निसाइल आलमीन के अलावा किसी को हासिल नहीं है। सैयदा कायनात के साथ कुल औलिया कुल सहाबा इकराम की अकीदत है। जाएं आप ढूंढ कर देखें कि किस तरह सैयदा कायनात के उस दरवाजे के पास से सहाबा इकराम अदब व एहतराम के साथ गुजरते हैं, सैयदा कायनात की दहलीज से मोहब्बत रखते हैं, आपके दरो दीवार से मोहब्बत रखते हैं। और सहाबा इकराम को भी मालूम था कि हजूर उससे खुश होते हैं जो सैयदा कायनात और आले ज़हरा से मोहब्बत करता है, अकीदत रखता है, अदब करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और कुल आलमीन के मुसलमानों को अहले बैत और हकीकी अहले बैत में से जिनको खसूसियत हासिल है, यानी अज़वाज मुतहरात भी अहले बैत हैं, हजूर के सारे घराने वाले अहले बैत हैं, लेकिन जिनको खसूसियत हासिल है, जब उर्फ़ आम में बर्रे सगीर पाको हिंद या पूरे अरब व अजम में अहादीस के ज़हीरा में आइम्मा हदीस ने, आइम्मा मुहद्दिसीन ने,
आइम्मा तफसीर ने जब भी अहले बैत का जिक्र किया तो खसूसियत वालों का खास कर जिक्र किया कि जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन हब्बल हसन वल हुसैना फ़क़द अहब्बनी, कि जो मेरे हसन और हुसैन से मोहब्बत करेगा वो दर हकीकत मुझसे मोहब्बत करेगा। व मन अबग़दहुमा फ़क़द अबग़दनी, जो इनसे बुग़्ज़ रखेगा वो दर हकीकत मुझसे बुग़्ज़ रखेगा। गामदी साहिब ये तासुब की ऐनक उतार कर रिफ्ज़ और शीयत के इस खौल से आप भी बाहर आ जाएं। आप भी फिर कहते हैं कि मैं सीधा साधा मुसलमान हूँ, तो फिर सीधी सादी हदीस पाक बयान कर दिया करें। ना इसके अंदर शिया है, न सुन्नी है, न कोई और मकतब फ़िक्र है। मैंने जो हदीस बयान की हैं वो बिल्कुल इन चीज़ों से पाक साफ गुफ्तगू आप नाजरीन की खिदमत में रखी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आले ज़हरा की ग़ुलामी की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अहले बैत अतहार, अहले बैत रसूल, औलाद अली, औलाद ज़हरा से अकीदत अता फरमाए और तमाम अज़वाज मुतहरात का भी अदब एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। लेकिन जिनको जो जो खसूसियत हासिल है वो हक़ गोयाई से बयान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। कायम हो बदन से कफन की निस्बत, चेहरे से अया हो पंज तन की निस्बत। या रब मेरी तकदीर में लिख देता हशर, अली और ज़हरा, हसन और हुसैन की निस्बत। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।